So today we have with us Shruti Jadhav, who has scored 100 on 100 in the very difficult subject of mathematics, which is a fear factor for many people, and also a 95 on 100 in accounts. So the दोनों जो practical subjects होते हैं, basically commerce stream में जिसमें score करना होता है, जिसमें score कर सकते हैं, उसमें उसने बहुत ही एक remarkable achievement किया है of getting 95 and 100 marks. So we welcome Shruti and Sajan sir. So hello Shruti, hello sir. Hello ma'am. Good morning, Shruti. Okay. So we have certain questions which we have got from our juniors who are currently studying in the 12th standard in our classes. So आपण श्रुतीशी आज discuss करणारे सगळे questions so that her experience, her result, her preparation style will also motivate and help the students of this year. Last year also we had a similar interview of the 100 on 100 scorer, that is Gandhali Dev, who had scored 100 marks in mathematics. So this is the second consecutive year when we are getting 100 on 100 marks because of Gandhali, and this year because of Shruti. So they have made us extremely proud. Now let us start with the questions for Shruti. Okay, Shruti, basically result जेव्हा डिक्लेअर झाला तेव्हा ते 100 on 100 जे मॅथ्स चे मार्क्स दिसले मार्क लिस्ट मध्ये, वो आपको क्या एक्सपेक्टेड था या वो सडनली आया या आपका टारगेट पहले से ही सेट था कि नहीं ये तो मिलने ही है या ऐसे कुछ, या एक्चुअली व्हाट वाज द फीलिंग? Actually, I was obviously very excited, very much, because starting पासूनच असा aim होता 100 चा. But after the paper, I was pretty confident कि I'll go above 95 or something. But 100 was actually a surprise because I never thought like सगळं बरोबर असेल आणि काही ते मार्क कापणार नाहीत. So yeah, it was a surprise. तो ये आपने कब श्रुति डिसाइड किया कि मेरे को 100 ही चाहिए? ये कहीं बाय बॉर्न, जैसे 11th में आपके क्या स्कोर थे? मैं ऐसे जनरली जूनियर्स को पता चलने चाहिए. Not much, like 79 or 80 something. Great. Not, And accounts में approximately? Accounts में तो actually कम थे, 81 or 85 something between that. And today in accounts you are currently in 95 and maths 100 marks. So what makes you suddenly change? मतलब कि आपके अंदर से ये किसने लाया कि आपको 100 स्कोर करना चाहिए? क्योंकि जिनके 95 और 100 आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ तो टारगेट फिक्स किया होगा. तो what makes you to achieve this? Actually last year जब 11th में थे, so तभी जो टॉपर्स जो लोग थे उन्होंने इंटरव्यू दिया था and they got like 90 and 100, 95 and 100. So yeah, वो उसमें बहुत इंस्पायर हुआ उससे, like कि हमें भी करना है. And secondly, my mother is also a math teacher, so I thought like I wanted to make her proud. So Okay, कौन से आपके जूनियर, आपके सीनियर कौन थे जिनका आपने सुन के आप मोटिवेट हुए? उनका किसका नाम याद हो आपको? yeah, Gandhali, yeah, she got 100, and also Gandharva, he had 99 in maths and 100 in accounts. So Yes, they both were like very inspired. So I great. thought I wanted to do that. ओके, मॅथ्स इज जनरली अ व्हेरी टफ सब्जेक्ट, किंवा जसं मी म्हणलं तरी तो एक सब्जेक्ट असतो जो कॉमर्सच्या स्टुडंट्सना त्याच्याबद्दल भीती असते, त्याच्यात स्कोर येणार नाही, मॅथ्स जमत नाही, असे खूप फिलिंग्स असतात लोकांचे. तर एक्झॅक्टली व्हॉट वॉज युअर प्रिपरेशन मेथड फॉर मॅथ्स? लाईक हाऊ डिड यू गो अबाउट इट? लाईक प्रिपरेशन कसं केलं? Actually, maths has always been my strong point. But त्याला regularly time द्यायलाच लागेल. त्याला काही हे नाही. 1 hour daily is also enough. आणि endला if you understand the concept सगळं solve करून झालंय. Endचे months just papers, just board papers continuously. मग आपण at a point असं होतं की सगळं solve करून झालंय and we are prepared for every possible thing. So होऊन जातं. ओके ओके. सो M1 and M2 दोन्ही जे सब्जेक्ट्स असतात तर त्यातला जनरली व्हॉट विल यू सजेस्ट टू युअर ज्युनियर्स की व्हॉट शुड दे एक्झॅक्टली फोकस अपॉन? का M1 ला जास्त टाइम द्यायला पाहिजे, M2 ला द्यायला पाहिजे, का इक्वली बॅलन्स ऑफ करायला पाहिजे? लाईक हाऊ एक्झॅक्टली दे शुड गो अबाउट इट? माझ्या म्हणजे पर्सनली फॉर मी M2 वॉज क्वाईट चॅलेंजिंग. M1 वॉज प्रिटी सिम्पल बिकॉज त्याच्यात एकाच टाईपचे असतात, म्हणजे थोडंसं लॉजिक लावलं तर होऊन जातो सॉल्व. अँड M2 इज क्वाईट
लाईक खूप कॅल्क्युलेशन्स असतात त्याच्यात, अँड आपल्याला एक्झाम मध्ये कॅल्सी नसतो, सो इट्स व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग ऑल्सो, आणि पेशन्स लागतात त्याला जास्त. सो मग पेपर मध्ये पण M1 पेक्षा M2 ला जास्त टाइम लागतो. सो फोकस मोर ऑन M2, बट M1 पण. M1 आणि M2 चा ओव्हरऑल तुझा क्लास बद्दलचा एक्सपिरियन्स, किंवा हाऊ इट हॅपन्ड और हाऊ इट वॉज टेकन अबाउट इन द क्लास, अँड व्हॉट वॉज युअर, म्हणजे क्लास मध्ये करायचं प्लस एक्स्ट्रा करायचं काय, एक्झॅक्टली हाऊ यू यूज टू मॅनेज इट? फॉर M1 सायली मॅमनी खूप खूप चांगलं घेतलं. शी सॉल्व्ड एव्हरी सम इन क्लास, आणि मग त्याच्यामुळे हे प्रिपेअर झालो त्याच्यासाठी. आणि मग घरी पण जाऊन एकदा फक्त गो थ्रू करायचं रोज, देन इट्स ओके. आणि M2 साठी ऐश्वर्या मॅमनी खूपच छान घेतलं, आणि सो त्याच्यामुळे पण M2 वॉज ऑल्सो क्वाइट सिम्पल. ओके ओके, श्रुति, आपने बोथ द सब्जेक्ट, जो दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंट्स एंड मैथ्स, दोनों में अच्छा स्कोर किया. मैथ्स के बारे में काफी डिस्कशन किया मैम के साथ आपने. अकाउंट्स में भी आपके 95 मार्क्स है, तो व्हाट बेनिफिटेड यू कि क्लास से ऐसा एक इतने हाई मार्क्स स्कोर किया? जैसे आपने बताया कि 11th में भी आपके मार्क्स नहीं थे, आपने ठीक है मोटिवेशन लिया, तो लेकिन अल्टीमेटली आपने प्रिपेयर, आपने ये भी हमसे पहले एक बार डिस्क्लोज किया था कि आपने गंधर्व से पर्सनली एक बार बात भी किया है कि कैसे पढ़ा जाए और कैसे स्कोर किया जा सकता है 100 ऑफ 100. तो कोई एक पर्टिकुलर वे है जैसे आपने स्टडी किया, पेपर सॉल्विंग या इन सब के बारे में आप कुछ बताएंगे? और अकाउंट्स तो पूरा क्लास पे ही डिपेंडेंट थी. क्लास में रेगुलरली इतने सारे सम्स सॉल्व करते थे, और आफ्टर एवरी लेसन वीक में 1-2 बार तो टेस्ट होते ही थे. और प्लस हमने इतने सारे बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, और प्रीलिम्स थे, मतलब कंटिन्यूअसली इतने सारे टेस्ट दिए कि एट अ पॉइंट सारे टाइप के सारे सम सॉल्व कर ही लिए थे. सो इसलिए इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट पेपर में. ये जो आपका बोर्ड पेपर सॉल्व करने का 10 पास बोर्ड पेपर जो मेरे क्लासेस से रन करता है 10 डेज में 3 आवर्स ईच डे, नॉन स्टॉप, नो संडे, तो हाउ मच बेनिफिटेड इट टू यू? वो तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, बिकॉज बोर्ड में सेम सम्स ही आते हैं आफ्टर सम टाइम, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन. और वो 10 पेपर सॉल्व किए, इसलिए पेपर में से कुछ अलग नहीं लगा कि मतलब 3 घंटे बैठना है. इट वाज लाइक अ कॉमन थिंग फॉर अस, सो इजीली हो. ऑलमोस्ट आपने 10 डेज की एक अच्छी खासी बोर्ड एग्जाम सिनेरियो में, और काफी स्टूडेंट्स थे, सब लोग एक साथ बैठते थे, जिसके कारण एक दूसरे को सबको मोटिवेशन मिलता था. ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, व्हाई वी आर सिटिंग 3 आवर्स फॉर 10 डेज, वो भी नॉन स्टॉप. ठीक है, एक और चीज थी, टेस्ट पेपर आप डिटेल चेकिंग वगैरह होती थी, तो आप जनरली क्या होता है कि हमको भी हम भी कभी स्टूडेंट थे, तो टिक करके मार्क्स दे दिए जाते थे. आपके पेपर कैसे चेक होते थे? नहीं, क्या उसमें कोई पूरा कमेंट्स रहते थे? यस पूरा, मतलब अगर लिटरली एवरी डिटेल, बिकॉज स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया था फॉर 100 मार्क्स. और जब हम 100 मार्क्स के जाते तो वो छोटी छोटी चीजें लेके मार्क्स काटते. सो वी वर प्रिपेयर्ड इवन फॉर दैट कि वो ना हो और 100 ही स्कोर हो. सो उसके वजह से सबको, ऑलमोस्ट बहुत लोगों को 90 के ऊपर मिले. नो वन मेड एनी लाइक स्मॉल मिस्टेक्स, वो सब ध्यान में रख के इसलिए. श्रुति, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अकाउंट्स एंड मैथ्स में एक अच्छा स्कोर आया है, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए जिस प्रकार से हम क्लास में इवन सेंटीमीटर लाइंस के लिए भी हम इम्फेसाइज करते हैं, तब स्टूडेंट इरिटेट होते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, हम इतना स्मॉल स्मॉल मेजरमेंट क्यों करवा रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए. सो इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं, जूनियर्स को क्या कम्युनिकेट करेंगे? वो जो बोल रहे हैं वो सुनो, ऑफ कोर्स दे आर सेइंग दैट फॉर अस. और पेपर में वो देखते हैं कैसा प्रेजेंटेशन है, कितने बार कट किया है, और रफ वर्क वगैरह सब देखते हैं. वर्किंग नोट्स अच्छे से बनाओ, और पूरा पेपर क्लीन दिखना चाहिए, और जो मैम एंड सर जो भी सजेशन दे, इट्स राइट एंड फॉलो दैट. अल्टीमेटली आपको ये कुछ स्पेशल प्रिपरेशन आपने किया था क्या? आपने अपने पर्सनल लेवल में हमारे बताए
आपकी मॉम भी टीचर है, तो आपने कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया था ताकि जूनियर्स को भी इनपुट मिले, हमको भी कुछ मिले? मैथ्स के लिए तो फिर या मैंने पूरी टेक्स्ट बुक सॉल्व की 2 बार, दो बार तो एटलीस्ट की ही होगी। इट्स वर्थ फॉर यू। या फिर पेपर्स मैंने बहुत सारे सॉल्व किए एंड मंथ में, ओनली बोर्ड पेपर्स। और बोर्ड पेपर्स के वजह से ऐसे होता है कि मतलब सारे मतलब अगर हम एक चैप्टर करने लगे देन वी गेट इनटू दैट, और जब अगला करने के बाद वो चैप्टर वापस करे तो नहीं आता है सब। इसलिए बोर्ड पेपर्स के वजह से सब मिक्स पेपर्स होते हैं, सो लाइक पेपर के हिसाब से माइंडसेट हो जाता है। सो इसलिए बोर्ड पेपर्स मस्ट इज अ मस्ट। सो ओव्हरऑल आपने तू ऍक्च्युली जे अचीव केले प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स मध्ये मार्क्स, सो ऍक्च्युली स्टडी प्लॅनिंग तुझं कसं होतं? म्हणजे डे मध्ये तू कसं लाईक अकाउंट्स मॅथ्सला कसं टाइम ड्युरेशन किंवा फायनल प्रिपरेशनच्या वेळी लास्ट डे ला बेसिकली काय प्रिपरेशन करायची फॉर अकाउंट्स मॅथ्स, किंवा हाऊ डिड यू गो अबाउट इट? बिकॉज लास्ट डे प्रिपरेशन इज अ व्हेरी टफ पॉइंट विच एव्हरीबडी नीड्स टू डील विथ. सो what did you actually do? फॉर मॅथ्स ऍक्च्युली आय मेड अ बुक ज्याच्यात मी सगळे फॉर्म्युले लिहिलेले लेसन बाय लेसन. म्हणजे आता मॅथ्सचं फर्स्ट चॅप्टर आहे, सो त्याचे सगळे फॉर्म्युले, आणि स्पेशली M2 साठी फॉर्म्युला लर्न असणं मस्ट असतं. आणि सगळे ट्रिग्नोमेट्रीचे जे फॉर्म्युले आहेत जे M1 साठी खूप गरजेचे आहेत डेरिव्हेटिव्ह अँड इंटिग्रेशन साठी, सो मग ते पण सगळे लिहून ठेवलेले. आणि ते एंड टाइमला फक्त ते सगळे गो थ्रू करायचे, आणि जेव्हा आपण सम सॉल्व्ह करू, जेव्हा ते आपल्या फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये जर नाही आले तर ते मार्क करून ठेवायचे, आणि एंडला फक्त तेवढंच करायचे. करेक्ट. आणि अकाउंट साठी सगळे सम जे सॉल्व्ह एक्झाम्पल्स और जे वेगळे वेगळे सम्स आहेत अवघडवाले, ते सगळे गो थ्रू केले एंड डेला. आणि थिअरीची जास्त प्रॅक्टिस केली, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन साठी. येस. श्रुति, बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कभी होमवर्क करके नहीं आए हो और सडनली क्लास में, फिर उसके बाद आपको क्लास के बाद रुकना पड़ा, तो उस टाइम बहुत बुरा लगता होगा कि हम बहुत फोर्सफुली की, जबकि आप ब्राइट स्टूडेंट थे तब भी हम रोकते थे, तो उसके बारे में ओवरऑल अपने जूनियर्स को क्या बोलोगे? एक्चुअली आई वाज नेवर अ सिंसियर एंड ऑलवेज स्टडिंग वाला स्टूडेंट. लाइक मैंने बहुत मस्ती की है क्लास में, सर आपको तो पता ही होगा. बट जब स्टडी का टाइम आता है तब करना ही पड़ता है, लाइक देयर इज नो अदर ऑप्शन. बट मैंने भी बहुत बार होमवर्क्स नहीं किए हैं और बहुत बार मैम से डांट भी पड़ी है, बट करना तो पड़ेगा. दैट वो बाद में पे ऑफ करेगा ना. आप अपने जूनियर्स को ऐसा कुछ मैसेज प्रोवाइड करिए जैसे आपके सीनियर्स ने आपको प्रोवाइड किया था, ताकि एक मोटिवेशन उनके अंदर भी आए कि ये 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि कॉमर्स मतलब इंजॉयमेंट और मजा मस्ती, और मैक्सिमम लोग तो क्लास भी नहीं लगाते. तो एक क्लास नहीं लगाते हैं जो स्टूडेंट, राइट रहते हैं तब भी नहीं लगाते हैं, सेकंड एवरेज रहते वो भी नहीं लगाते. बहुत कॉमर्स के रिगार्डिंग बहुत एक मिथ चल रहा है मार्केट में, जिसके कारण हमको भी बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में, स्टूडेंट फोकस नहीं रहते हैं. तो इसके ऊपर एक लाइट डालेंगे क्या, जूनियर्स को एक मैसेज दीजिए ताकि वो मोटिवेट भी हो और क्लास रिगार्डिंग भी हो फोकस? इट्स एक्चुअली अ मिथ कि कॉमर्स इजी है, मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. बट यू हैव टू स्टडी, जो भी करना है यू हैव टू स्टडी, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट. और मस्ती करो, क्लास में भी मस्ती करो, बट जब पढ़ाई का टाइम आए देन यू हैव टू स्टडी, फिर उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. श्रुति एक्चुअली ऐसी स्टूडेंट थी जो वो ये सब लोग ना 3-4 लोग एक कोने में बैठते थे और फुल दंगा करते थे, जैसे पूरा क्लास ना सामने से आवाज आते रहता था. तो आप ओवरऑल क्लास के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हो कि ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेसिकली इसमें बहुत लोगों का रहता है कि नहीं एकदम सीरियस मोड में स्टडी होना चाहिए, या कैसे एक्चुअली, हाउ डू यू थिंक इट शुड बी? नहीं, बहरे क्लासेस के साथ तो एक्सपीरियंस इज ऑब्वियसली गुड, बिकॉज हमने सब किया है. जब मूड नहीं होता तो मैम को बोलते थे कि आज नहीं करते, विल डू समथिंग एल्स. सो हम ऐसे क्विज खेलते थे, और फिर ट्रिप्स इतने सारे, मजा आता था ट्रिप्स में भी. और एनवायरनमेंट पूरा स्टूडियस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ क्वाइट बिट फन. सो फिर उससे लर्निंग में भी ज्यादा मजा आता है, ऐसे मुझे लगता है, आई डोंट नो. बट जब सीरियस करना हो, जब सीरियस होना चाहिए तब सीरियस ही होना चाहिए, लाइक नॉट ऑलवेज फन.
म्हणजे मज्जा पण असते आणि ओरडा पण पडतो, दोन्ही एकत्र. ओरडा ओके. पण पडतो हो. क्योंकि जो मैंने आपके बैच के थ्रू जो पास थ्रू हुआ हूँ, देखा मैंने कि मजा मस्ती करते करते पूरे साल का पूरा स्टडी कंप्लीट हुआ है, तो ना मेरे को समझ में आया कि कब पोर्शन कंप्लीट हो गया, और पूरे मजे मस्ती के साथ में। तो Yes, इसके sir. ऊपर तो ये है। एक मैं और बोलूंगा कि आपकी क्लोज फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड, मतलब एकदम एसपी कॉलेज से आप हो, सही दंडवते आपकी फ्रेंड है, उसको 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में आए हैं, 99 इन मैथ्स आए हैं उसको भी। अब आपको ये जो 95 आपको श्रुति 95 आए हैं अकाउंट्स में, तो ये आप 5 मार्क्स को कितना मिस कर रहे हो आज? बहुत ज्यादा। एक्चुअली मुझे एग्जाम के बाद भी काइंड ऑफ रोना ही आया था, बिकॉज मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक की थी, बहुत मतलब ऐसे कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब बहुत सिली मिस्टेक, और उसके वजह से मुझे पता था मेरे मार्क्स जाने ही वाले। सो वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि हाथ के थे वो मार्क्स, एंड मैथ्स एंड अकाउंट्स मिलते हैं उसमें अच्छे मार्क्स, और वो गए। सो लाइक बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा था। ओके, तो आप जूनियर्स को कम्युनिकेट कर रहे हो कि 100 मार्क्स लाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन नहीं आपको नहीं 100% फोकस्ड रह के पूरी प्रैक्टिस के साथ, और सिली मिस्टेक सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको इग्नोर करना है, राइट? या और एग्जाम के टाइम पे फुल माइंडसेट एकदम काम होना चाहिए, और फास्ट फास्ट पेपर सॉल्व करना है, और जस्ट डोंट डू एनी सिली मिस्टेक्स। फिर और अगर प्रिपरेशन अच्छा हो और एग्जाम अच्छी गई हो, देन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, उसी पे ऍक्च्युली मी अभी आने वाली थी की अकाउंट्स आणि मॅथ्स दोन सब्जेक्ट असतात ज्याच्यात पेपर कंप्लीट व्हायचे इश्यूज काही लोकांना येतात. सो हाऊ डिड यू एक्झॅक्टली मॅनेज द टाइम फॉर द अकाउंट्स अँड मॅथ्स पेपर्स? कसं ऍक्च्युली हाऊ डिड यू गो अबाउट इट? फॉर मॅथ्स ऍक्च्युली मला असं मनात होतं की मला ऑप्शन्सचे सम पण सॉल्व्ह करायचे, टू बी ऑन द सेफर साइड. सो म्हणून मी स्टार्टिंग पासूनच फास्ट 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 सॉल्व्ह करायला चालू केलं, एक स्पीड कॉन्स्टंट मेंटेन केली. बिकॉज वी नेवर नो आपलं काही चुकलं असेल तर, मे बी ज्याच्यात डाऊट असेल की बाबा हे बरोबर नाही. सो आय हॅड टू सॉल्व्ह सम ऑप्शन क्वेश्चन. सो मी थोडे काही काही ऑप्शनचे पण सॉल्व्ह करून आलेले. आणि अकाउंट साठी तर मग एवढे सारे पेपर्स आता सॉल्व्ह केले क्लासमध्ये, 10 बोर्ड पेपर्स प्लस. तो श्रुति, आपने ये जो पास्ट 10 एग्जाम के पेपर्स को सॉल्व किया, और कितने टाइम में? ये 3 आवर्स का जनरली पेपर रहता है, और बहुत से स्टूडेंट्स जो रहते हैं कि वो 3 आवर्स में भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आप फैक्ट बताइए, कोई मैंने आपको कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, जो आप जितने टाइम में आप पेपर कंप्लीट कर लेते थे अकाउंट्स का, वो आप अपने जूनियर्स को कम्युनिकेट करिए प्लीज। जो हमने 10 पेपर सॉल्व किए थे वो यूजुअली 2.5 और 2 आवर्स में हो जाते थे. पता नहीं कैसे मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मिलते टाइम, बट हो जाता है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अगर टाइम मैनेजमेंट हो प्रॉपर. मैम ने जो बताया कि इस सम के लिए इतना टाइम देना है, अगर वो प्रॉपरली फॉलो किया तो फिर या टाइम हो जाता है, टाइम में हो जाता है पूरा. क्लास में जब आप क्वेश्चंस करते थे तो अपन विद ऑप्शंस करते थे, ये भी कंप्लीट करिए, यस और यस हमारा कंप्लीट हो पूरा. जाता। या जो शेयर्स है वो भी करते थे, और उसके साथ सेंड। रिजोल्यूशन करते थे, और एडमिशन के साथ रिटायरमेंट, सारे जो ऑप्शंस के साथ जो सम है वो पूरा करते थे. और तब भी आपके कंप्लीट हो जाते थे पेपर बिफोर, यस मच बिफोर देन द टाइम। और उसके बाद हमारे पास बहुत टाइम रहता था उसके प्रेजेंटेशन में अंडरलाइन ड्रॉ करने के लिए एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, यस वो आपको एक काफी बेनिफिट किया होगा कि अकाउंट्स के पेपर लिखने में कि एक्चुअली हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहता है। एक मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस श्रुति, आपने एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है कि आपके जूनियर्स को आप ऐसा एक मैसेज दीजिए ताकि वो भी मोटिवेशन में मोड में जाएं कि एक बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज एंड स्कॉलर स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन कॉमर्स में आने के बाद उनके फ्रेंड सर्कल मजा मस्ती के कारण, और जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या हो गए हैं कि उनके टारगेट्स बहुत ज्यादा स्लो हो गए हैं, या कि वो स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट मैसेज यू वांट टू कम्युनिकेट टू योर जूनियर्स? मैसेज यही है कि मजा करो. इट्स नॉट कि मजा नहीं करना है पूरा 12 आवर स्टडी एंड ऑल, बट जब स्टडी का टाइम हो और जो सूटेबल हमें लगे, लाइक कुछ लोगों को रात में पढ़ाई करना पसंद है, कुछ लोगों को दिन में, वैसे अपना जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम है जो हम वो ढूंढो, एंड उस टाइम में उतना स्टडी करो और रेगुलरली करो, फिर एंड में ज्यादा बर्डन नहीं आता है.
इसलिए फिर सब या मिल जाते हैं अच्छे मार्क्स। श्रुति, आप फाइनली एक मेरे क्लासेस के साथ, फैकल्टी के साथ, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ, कुछ भी अदर फैक्टर्स के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे जूनियर्स को? यस, मेरा एक्सपीरियंस मेरे क्लासेस के साथ लाइक 11th स्टैंडर्ड से हूँ मैं मेरे क्लासेस में। सो या मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। टीचर्स सारे बहुत हेल्पफुल है, जब भी कोई डाउट हो, कुछ भी हो, दे आर ऑलवेज देयर। ऐश्वर्या मैम, सजन सर, साइली मैम, सारे टीचर्स हमेशा हेल्पफुल रहे और मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए वहाँ पे और उनके साथ बहुत मस्ती की है, बहुत सारी ट्रिप्स में, क्लासेस में, इवन लेक्चर्स के टाइम पे। और हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की है। ग्रेट श्रुति। श्रुति, आप अभी करेंटली क्या कर रहे हो अपने जूनियर्स को बताएंगे आप? मैं सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन। अच्छा, और ये सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कब से हमने स्टार्ट की है? 11th स्टैंडर्ड में दिसंबर से। हाँ, दिसंबर से। अप्रोक्सीमेटली नवंबर दिसंबर से अपन ने स्टार्ट की थी। कभी भी Yeah. आपको किसी भी जो टॉपिक अपन ने सीए फाउंडेशन का लिया है, जैसे हम बोलते हैं, तो कभी भी कोई बर्डन आया है क्या? मैं डिटेल में नहीं बताता, आप डिटेल में बताइए अपने जूनियर्स को। ऐसे बर्डन एज सच नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं सीए फाउंडेशन में वो 11th-12th से ही रिलेटेड है। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, बट या वी कैन डू दैट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और इसलिए 12th के मार्क्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कुछ अलग नहीं करना है, वही करना है। उल्टा ज्यादा स्कोर होने में मदद होती है, बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड फॉर हायर लेवल। सो 12th बोर्ड एग्जाम थोड़ा इजी लगता है। ओके, कभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आए बोर्ड एग्जाम के, तो भी आप वो इजीली आप उसको अपियर कर सकते हो, बिकॉज आपने सीए फाउंडेशन लेवल के सेम टॉपिक का। और जनरली हम लेक्चर कब लेते हैं श्रुति? सैटरडे संडे, सैटरडेज। Saturday only, on maximum 2 hours on Yeah. Saturday only. Okay, so this way हमने जैसे ही आपका प्रिपरेशन करके लिया, आप 11th में 12th में आपने दोनों में सीए फाउंडेशन में प्रिपरेशन की, अभी आप कर रहे हो। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज सीए फाउंडेशन। Thank you, sir. ओके, सो सी यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। आपका फीडबैक जूनियर्स के लिए बहुत सही था, एंड यू आर ऑल्सो अ ब्राइट स्टूडेंट। मेरे लिए हमेशा आप ब्राइट स्टूडेंट थे। स्टिल आपने इतना अच्छा स्कोर किया, मैं स्टिल चाहूंगा कि आपका सीए फाउंडेशन में एक अच्छा रैंक आया। ओके, Yes, sir. Sure. वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हम उसकी भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू।